Let's see the next type of enthalpies. We are supposed to see the enthalpy associated with the change in atomic or molecular structure. I'm going to give this as number 9. We have seen till 8, and this is enthalpy or heat of atomization. This is the symbol. You're supposed to write A here, and I'm giving you an example here. In this, 1 mole of a gaseous molecule gives its constituent gaseous elements in their atomic form. So this is how I'm supposed to write. This is atomization. You can't write like this. This is wrong. And then balance. This is wrong because these are molecules. Here we are studying atomization. So atoms must be produced. Here atomization is 1 mole of gaseous molecule getting converted into its constituent elements in their gaseous atomic form. Let's say if I take methane, this is gas, 1 mole of gaseous molecule getting converted into C gas and 4H gas. If I write this reaction as C solid, this will be a mistake, and 2H2 gas, another mistake. This is a molecule, so it's a mistake. You should not write it like this. Again, atomization, it's obviously the amount of it required to convert compulsorily 1 mole of gaseous molecule into its constituent gaseous elements in their atomic form. As you all can observe here, from reactant to product, the physical state is not changing. They are all in uniform physical state. These are all homogeneous gaseous reactions, and that is why this reaction will not come under phase transition. There is no physical state change. From reaction number 4 to 8, that was the last segment, we have seen the phase transition. Right here, there is a change in molecular structure. Molecule is getting converted into atom. The next of such type is the enthalpy, or rather we can say enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization. It is the amount of energy required to remove the outermost electron from 1 mole of isolated gaseous atom. Correct? Let's say we have a sodium. Now sodium, it should be in gaseous form. Correct? Obviously by using enthalpy of sublimation we can convert sodium solid to sodium gaseous form. Now when I remove the electron, the first electron here, what I will get is Na plus. This is Na plus in the gaseous form, and this should be called as the first ionization enthalpy. Why first ionization enthalpy? Because obviously I have removed first electron. So is there anything called a second ionization enthalpy? Yes. What will be the reaction for the second ionization enthalpy? Or rather, what will be the reactant? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. अभी सेकेंड निकाल रहे हैं मतलब पहला जा चुका है, तो ये जो इसका प्रोडक्ट है वो अभी इसका रिएक्टेंट हो जाएगा. 1 मोल ऑफ गैसियस आयन है ना, यूनिक पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, ये हमेशा इसका रिएक्टेंट रहेगा है ना. Na+2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ये सब लिखने की अपने को आदत नहीं है. These are all hypothetical reactions. So ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है. आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना is ionization potential. It is the amount of energy required to remove the outermost electron from 1 mole of an gaseous isolated atom. The second ionization enthalpy is always greater than the first ionization enthalpy, and the reason is increase in positive charge density. Now let me explain what is this increase in positive charge density
and why this is responsible for second ionization enthalpy to be greater than first ionization enthalpy. This is isolated gaseous atom of sodium having atomic number 11 and configuration 281. The outermost electron is removed. इसके लिए जो एनर्जी लगता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होने वाला है? अभी यहाँ पे उसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 11 के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही है. इसके लिए एक पॉजिटिव चार्ज सरप्लस हो गया. करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे ऐसा लगता है कि थर्ड शेल डिस्ट्रॉय हुआ, क्या? ऐसा नहीं है ना. यहाँ पे स्क्वीजिंग इफेक्ट आता है. मैं आपको समझाता हूं. ये जो लिखा है मैंने 281 का, ये इसका डायग्राम है. 281, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा. वो जाने के बाद शेल वैसे ही है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. और प्रोटॉन कितने हैं? वो तो 11 के 11 ही है. करेक्ट है. लेकिन 11 प्रोटॉन को अकोमोडेट करने के लिए जो जगह है वो कम हो गई है. इसका रीजन ऐसा है, यहां पे 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को संभालना था, पकड़ के रखना था. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ी, तो वो सिर्फ बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता नहीं है, अपने तरफ खींचता है. खींचने की वजह से स्क्वीजिंग इफेक्ट आता है. अब 11 प्रोटॉन्स को रहने के लिए जो जगह है वो कम हो गई, मतलब ही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी है. अगर आप पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऐसा रीजन लिखते हैं, दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर. पॉजिटिव चार्ज बढ़ नहीं रहा है, कोई 12वां प्रोटॉन बाहर से अंदर आया नहीं. प्रोटॉन तो 11 के 11 ही है, लेकिन वो जिस इसमें रहते हैं उसका वॉल्यूम या उसका साइज कम हो गया है ना. इसके लिए हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा है. नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ दिस टाइप इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ऐसे लिखते हैं EG, ऐसे लिखते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा भी कहते हैं, है ना. 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ऑब्वियसली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वही, getting converted into its gaseous ion. During this, the energy which is released is called as electron gain enthalpy. So, electron gain enthalpy is the amount of energy released while gaining an electron. We know electron, chlorine belongs to halogen, is highly electronegative. वो कोवैलेंट बॉन्ड में सामने वाले के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है. ऐसा इसके लिए क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वाइज इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, डेस्परेटली इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेता है. तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हाइल गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं. ऐसा वो क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अच्छे से समझ में आता है. एफिनिटी मींस हैविंग लव टुवर्ड्स समथिंग और समबडी. तो दे हैव डेस्परेट लव फॉर इलेक्ट्रॉन बिकॉज बाय गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन देयर कॉन्फ़िगरेशन है ना विल बी लाइक एन आइडियल गैस और नोबल गैस. उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके लिए दे हैव ट्रेमेंडस लव फॉर इलेक्ट्रॉन. तो केमिस्ट्री उनको क्या कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, प्यार पाने की कीमत चुकानी पड़ेगी. तो दे आर रेडी फॉर इट, क्योंकि उनको उससे स्टेबिलिटी मिलने वाली है. थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से देखेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन इन है तो एनर्जी आउट है. ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी देते हैं. एनर्जी देने के वजह से उनको क्या मिलता है? ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है. वो जानते हैं कि स्टेबिलिटी मिलेगा, इसके लिए वो एनर्जी देने के लिए रेडी है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमने देखा, उसमें हम लोग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, मतलब कौन सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? जो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा डेस्परेट है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हेलोजन फैमिली का जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का. लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है. ये जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है ना. बाकी आगे ट्रेंड इज फॉलोड, ये सही है. सो देयर इज अ इर्रेगुलरिटी इन द ट्रेंड. ऐसा क्यों है? फ्लोरीन को ऐसा स्पेशल परमिशन क्यों है? इसका रीजन है इट हैज अ वेरी स्मॉल साइज. इसके लिए केमिस्ट्री इसको स्पेशल परमिशन देता है कि भाई तो कम एनर्जी देके भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. मान लो ऐसा अज्यूम करो कि ये फ्लोरीन का साइज है
है ना। ये फ्लोरीन का एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ऑलरेडी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट हो ना। इसका एटॉमिक नंबर इज 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 27, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा जरूर, करेक्ट ना। इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आने के बाद 10वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब रिपल्सिव फोर्स इतना बढ़ेगा कि स्टेबिलिटी की जगह पे अनस्टेबिलिटी आएगी, करेक्ट ना। अगर इसने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सपोज मान लो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन का साइज है ना, इससे काफी बड़ा है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी देगा, एनर्जी देने का इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा होता है, साइज जो है वो स्क्वीज होगा, स्क्वीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, लेकिन इसका साइज बड़ा है तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी साइज कम है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सपोज मान लो बहुत एनर्जी देता है, तो ये और स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी टू क्लोज टू कंफर्ट, इतना ज्यादा कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा और स्टेबिलिटी की जगह पे अनस्टेबिलिटी आएगा। दीज पीपल कैन अफोर्ड, उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेके बहुत एनर्जी दे सकते हैं। इसका साइज कम है, इसके लिए फ्लोरीन को स्पेशल परमिशन है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके कम एनर्जी देगा तो भी चलेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इरेगुलरिटी है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, फिर आगे ट्रेंड फॉलो होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी इज बॉन्ड एंथैल्पी, इसको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऐसा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, ये इसका फॉर्मूला है ना। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। पहले तो कंपाउंड के लिए, जैसे 1 मोल ऑफ gaseous molecule getting converted into its gaseous atom, तो ये तो एटमाइजेशन हो गया, दिस रिएक्शन इज एटमाइजेशन। तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज समवेयर अराउंड 1664 किलोजूल्स पर मोल, ऐसा है। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग 4 CH बॉन्ड एक साथ तोड़ रहे हैं। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इतना हीट लगता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या, जितने भी बॉन्ड है, यहां पे 4 है CH4 में, उनको एक साथ तोड़ने के लिए इतना एनर्जी लगता है। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना लगेगा, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। तो देयरफॉर द बॉन्ड एंथैल्पी, या तो एवरेज, ये एवरेज में बाद में समझाता हूं, ये जो मैंने लिखा है क्यों ऐसा लिखा है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी of a CH bond in CH4 क्या आएगा, 1664। 4 बॉन्ड को इतना लगता है, तो एक को कितना लगेगा, है ना। सो आई हैव टू लिटरली डिवाइड दिस एंड दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 416 किलोजूल्स पर मोल, इसको कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या हो गया, it is the amount of heat required to break one particular covalent bond from 1 mole of gaseous molecule. Amount of heat required to break one particular covalent bond from 1 mole of gaseous molecule, है ना। सीधे वर्ड्स में मैंने कहा ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, एंड है ना, लिखा ना, these are the number of bonds broken, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन गिव्स यू द बॉन्ड एंथैल्पी। 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना हीट लगता है, तो एक के लिए कितना, ऐसे बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं। ये एवरेज क्यों लिखा जाता है मैं समझाता हूं। ये हमने एक 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एक कंपाउंड के लिए किया, अब मैं एक किसी रिएक्शन में कैसे बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं वो आपको सिखाता हूं। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द बॉन्ड एंथैल्पी इन अ रिएक्शन। उसके लिए एक फॉर्मूला है डेल्टा एच, इट इज बेसिकली समेशन ऑफ the delta H of bonds broken, है ना, bonds broken in reactants ऐसा लिखते हैं। ऑब्वियसली bonds broken reactant में ही होते हैं, तो in reactants लिखने की जरूरत नहीं है। bonds broken minus just enthalpy of bonds formed in products, करेक्ट ना। बॉन्ड फॉर्म किधर होते हैं, प्रोडक्ट में ही होते हैं, है ना। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला है जो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक रिएक्शन लेते हैं, लेट्स टेक वी हैव CH4 गैस
made to react with O2 is giving us CH2O gas, and the byproduct is going to be H2O gas. Let's see whether the reaction is balanced or not. We have 1 carbon, 4 hydrogens. So we have 4 hydrogens and 2 oxygens. The reaction is perfectly balanced. एक चीज याद रखना, कहीं पे भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है ना, फेज ट्रांजिशन नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इसका मुझे बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। तो क्या करना चाहिए, पहले इसको एलोबरेटेड फॉर्म में लिखते हैं ये ऐसे, ताकि आपको समझ में आए कि CH4 ये ऐसा है, दिस इज गैस, O डबल बॉन्ड O गैस है ना, ये ऐसे आएगा CH डबल कार्बोनिल कार्बन गैस प्लस HOH गैस। ऐसा लिखने के बाद आपको समझ में आता है कि इसमें कौन से बॉन्ड है, कौन से टाइप के हैं। रिएक्शन जो आपको दिया गया है ना, इसको एलोबरेटेड फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, राइट। अब आप देख सकते हैं इसमें 4 CH बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड O एक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, CH बॉन्ड यहाँ पे भी है और OH बॉन्ड है, करेक्ट ना। तो कितने टाइप्स के बॉन्ड है, CH बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और OH बॉन्ड, 4 है ना। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं है ना। रिएक्टेंट्स में आपको कौन सा दिया है, एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, ऐसे कितने रिएक्टेंट्स में, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये तो एक ही है, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स में CH बॉन्ड है, करेक्ट ना। और कितने हैं CH बॉन्ड है ना, 2 है, कैन यू सी दैट। फिर कौन सा है ना, एंथैल्पी C डबल बॉन्ड O, वो तो एक ही है, और इसके अलावा डेल्टा H है ना, जो है OH बॉन्ड के लिए, ऐसा। OH बॉन्ड कितने हैं, अगर आप देखते हैं 2 OH बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 OH बॉन्ड है वाटर में, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, सिर्फ वो दिया जाएगा डेटा में बॉन्ड के हिसाब से, और फिर आपको बॉन्ड एंथैल्पी ओवर रिएक्शन मिलेगा। एंथैल्पी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 mole of gaseous molecule into its gaseous radical or ion or both। मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH4 ही लेते हैं, गैस, इसको कन्वर्ट करता हूं C गैस, एक हाइड्रोजन अगर मैं निकाल लूं तो ये रेडिकल आएगा CH3 गैस प्लस H गैस, ऐसे। फिर आगे CH3 गैस मेरा रिएक्टेंट है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो हो जाएगा CH2 गैस प्लस H गैस, तो CH2 गैस, ये CH गैस और एक गैस, और अभी लास्ट चौथा बॉन्ड CH गैस, C गैस प्लस H गैस। तो क्या फर्क है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इसमें चारों बॉन्ड एक साथ तोड़े होंगे, 1 एट अ टाइम, जबकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड तोड़े, लेकिन एक के बाद एक है, 1 आफ्टर द अदर है, ये फर्क है। तो इसमें एंथैल्पी है ना कितना लगता है, चारों आइडेंटिकल बॉन्ड ही तोड़ रहा हूं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, CH, यहाँ पे CH ही तोड़ रहा हूं, तो एंथैल्पी आइडेंटिकली लगेगा कि नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको लगेगा 427 किलोजूल्स पर मोल, यहाँ पे लगता है 439 किलोजूल्स पर मोल, फिर थर्ड स्टेप के लिए लगता है 452 किलोजूल्स पर मोल, और फोर्थ जो है 346 किलोजूल्स पर मोल। ये एंथैल्पी है, करेक्ट ना। अब सवाल ऐसा है कि चारों इसमें हम लोग आइडेंटिकल बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं, CH बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं, तो फिर हमेशा CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एंथैल्पी सेम क्यों नहीं है। और दूसरा ट्रेंड ऐसा कि बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते सडनली कम क्यों हुआ है, तो ये बढ़ता क्यों है और ये सडनली कम क्यों हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं,
यहाँ पे कार्बन को 4 हाइड्रोजन को संभालना है ना, ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूं ऐसे, 4 हाइड्रोजन को संभालना है, जबकि CH3 में कार्बन को सिर्फ 3 हाइड्रोजन को संभालना है। करेक्ट और नॉट? यहाँ पे उसकी जो ताकत है वो स्प्रेड हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कम संभालना है तो इन हाइड्रोजन को वो टाइटली पकड़ेगा। करेक्ट और नॉट? मतलब यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसके लिए CH4 के अंदर बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगता है। कैन यू सी दैट? 1 हाइड्रोजन कम हो गया तो ये बढ़ गया। फिर आगे क्या है? CH2 तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। करेक्ट ना? चारों में सबसे बड़ा। क्यों ऐसा है? ऐसा है क्योंकि ये सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कार्बन तो और पावरफुल हो गया, टाइटली पकड़ेगा, स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल है और इसका फ्रंट और बैक दोनों भी प्रोटेक्टेड है। फ्रंट अटैक और बैक अटैक पॉसिबल नहीं, इसके लिए मैक्सिमम है। जबकि यहाँ पे CH है सिर्फ, CH में ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये बॉन्ड तोड़ना बहुत इजी है क्योंकि इसका फ्रंट प्रोटेक्टेड है मान लो तो, लेकिन बैक तो वल्नरेबल है, तो बैक अटैक हो सकता है। ये यहाँ पे बैक प्रोटेक्टेड है तो फ्रंट अटैक हो सकता है। मतलब उल्टे का ये बॉन्ड तोड़ना इजी है, इसके लिए एनर्जी यहाँ पे कम लग रहा है। दैट इज द इरेगुलरिटी, ये इसका रीजन है। तो जरूरी नहीं कि चारों CH बॉन्ड है मतलब डेल्टा H आइडेंटिकल रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, इसके लिए ये इरेगुलरिटी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को मैं हेस लॉ अप्लाई करता हूं। हेस लॉ क्या कहता है? केमिकल रिएक्शंस कैन बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी अलजेब्रिक इक्वेशंस, दैट मींस दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो यहां पे मैं इन चारों स्टेप्स को ऐड करता हूं, लिटरली मैथ्स अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये गया, क्या बचा? CH4 गैस। करेक्ट और नॉट? गिव्स अस, यहां बचा है C गैस। करेक्ट, C गैस। जरा G बड़ा लिखता हूं, ये 9 नहीं है, गैस लिखा है, गैस। और 4 हाइड्रोजन में अगर ऐड कर दूं तो 4H गैस हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये तो रिएक्शन कौन सा हो गया? ये एटमाइजेशन का हो गया। अब डेल्टा H ऐड करता हूं, है ना, इसको लिटरली ऐड करते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस नंबर, किलो जूल्स पर मोल में आएगा, है ना। कैन यू सी दैट? किलो जूल्स पर मोल 1664, है ना। ये है ना, मैच हो रहा है कि नहीं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या लिखा है इधर? 1664। हेज लॉ क्या कहता है? रिएक्शन आप 1 स्टेप में करो कि मल्टीपल स्टेप में करो, डेल्टा H चेंज होता नहीं है। करेक्ट, दिस इज हेज लॉ, राइट। 4 स्टेप में भी वही डेल्टा H आया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 4 डेल्टा H है इनका मुझे एवरेज निकालना है, तो क्या करना चाहिए? चारों का एडिशन करके 4 से डिवाइड करना चाहिए। इन चारों का एडिशन तो वही आ रहा है, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 416 आया ना इधर, 416। इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी को एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऐसा भी कहते हैं। दिस इज प्रूव नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आज मैंने जितने भी एंथैल्पीज कवर किए उनको एक बार रिवाइज करना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my YouTube channel. Thank you.